So now we will talk about the second chapter of this section B, that is the analysis of food products. So after the chapter on analysis on water, here we are moving to the second chapter, which is the analysis of food products. So I am straight away starting with the first topic in the syllabus, and that is the nutritional value of foods. So you all know what is food, and by studying this chapter here, we are trying to know the different types of foods, what amount of nutritional value they have got, and what they offer in terms of calorie. So all food contains nutrients in some proportions or the other, and these nutrients provide energy in the form of calories. So this is the calorie, which is the standard unit of measuring the energy provided by the food, or we can call, in fact, it is the standard unit of measuring the energy. So the energy provided by the food is also measured in terms of calorie, and in general sense it is defined as the amount of energy needed to raise the temperature of 1 grams of water through 1 degree Celsius at a pressure of 1 atmosphere. So these are the standard conditions. Under these standard conditions, what amount of temperature is needed to raise the temperature of water by 1 degree Celsius, that defines calorie. So as far as the food is concerned, so in human food there are two components. Some are called macronutrients, and then there are other components which are called micronutrients. So talking about macronutrients, they form the major portion of the food, and they can be categorized as carbohydrates, proteins, and fats. Perhaps you all have heard about these macronutrients, and they are very essential for maintaining physical activities like breathing, etc. It is interesting to note here that carbohydrates and proteins, they provide equal amount of energy, that is 4 grams, or we could call 4 calories per gram. It means if you are going to have 1 gram of carbohydrate, you are supposed to get 4 calories of uh, energy from that, while fat contains 9 calories of energy per gram. So that is why it is being said that we should avoid the diet which contain fat, because that make us obese, weight gain problem. So excessive intake of calorie may cause weight gain, and insufficient calories may cause underweight problems. So as far as the nutrition value of food is calculated, there is a table given in your syllabus, probably the topic or the table number 5.1. I have taken a small screenshot from there. Here we are trying to compare different food items, and in front of them is written their calorie value. So we are seeing that this is bread, this is rice, cornflakes is there, biscuits and wheat bran is there. So if we compare, or if we have a look on the nutrition value of these foods, we are going to get that bread, rice, they provide optimum amount of energy to us in terms of calorie. But if you have a look at chocolate, we are going to get 520 calories per gram from this. So that is why it is being said that chocolate is harmful to us. मतलब चॉकलेट खानी है तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरीज हमें प्रोवाइड करती है, तो फैट की और ओबेसिटी की प्रॉब्लम वहाँ से आ सकती है. So this is the general sense why we take food in terms, or this is a general discussion of food in terms of their nutritional value. Now moving ahead, while we talk about food, what we are interested in discussing in this chapter is uh, how different types of foods are prepared, and what are the different types of food processes. There is a very common term these days we use processed food, and that is food processing. So first of all, let's we learn what is this food processing. It is being defined as the set of methods and techniques used to transform raw ingredients of the food, or to transform food into other forms for consumption by humans and animals. तो ये बेसिकली क्या है, एक सेट ऑफ मेथड और टेक्निक्स है जिसमें हम जो रॉ इंग्रेडिएंट्स है उसको कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं फूड की, और एक कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के साथ साथ इसकी हम थोड़ी सी शेल्फ लाइफ और क्वालिटीज़ को भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं. सो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग. नाउ व्हाट आर द एम्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मतलब हम करते क्यों हैं इसको. देर आर some reasons for that, like to prevent, reduce,
and eliminate infestation of food with microbes, insects और worms. अब क्या हो सकता है कि फूड के ऊपर माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी तो फूड स्पॉइल होना शुरू हो जाएगा. तो उसकी स्पॉइलेज को अगर हम बचाना चाहते हैं, फूड को स्पॉइलेज से बचाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फूड की प्रोसेसिंग कर देते हैं हम. टू प्रिवेंट और स्लो डाउन द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इनहिबिट द डेटेरियोरेटिव केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस. अब जब माइक्रोब्स ग्रो करते हैं फूड के ऊपर, तो क्या करते हैं, कुछ केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं फूड के ऊपर, और फूड हमारा स्पॉइल हो जाता है. तो फूड प्रोसेसिंग क्या करती है, दैट एक्चुअली प्रिवेंट और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ microbial growth or microorganisms. We can call the harmful microorganisms in specific. Next is to maintain and improve the nutritional properties of the food. Obviously, when we are performing food processing process, and we are assuming or we are trying to maintain or improve the nutritional properties, मतलब हम चाह रहे हैं कि जो उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ का लॉस ना हो, ज़्यादा टाइम तक उसमें वो बनी रहे. नेक्स्ट इज़ टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड. शेल्फ लाइफ का मतलब है कि कोई चीज़ अगर अनप्रोसेस्ड फॉर्म में 2 दिन तक सर्वाइव कर रही है, तो प्रोसेसिंग के बाद जब हमने उसकी फूड प्रोसेसिंग और कुछ के ऊपर कुछ मेथड और टेक्निक लगा के उसको प्रोसेस कर दिया फूड को, तो हो सकता है कि वो 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक यूज़ में आए. आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं. अगर आप घर में दही बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि दही की जो शेल्फ़ लाइफ आपके घरों में होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 दिन तक उसको रख पाएंगे. बट आप देखते हैं कि स्मॉल पैकेट्स में और स्मॉल बाउल्स में एक बना बनाया दही बाज़ार में बिकता है. उसके ऊपर अगर आप आज की फॉर्म में आज की टाइम में डेट देखेंगे, एक्सपायरी डेट जो होती है वो 10 से 12 दिन की रहती है. तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सारी की सारी जो चीज़ें वो फूड प्रोसेसिंग, इट मीन उसमें कुछ ऐसा ऐड किया गया है जो उस पर्टिकुलर फूड का जो शेल्फ लाइफ है वो 2 दिन से बढ़ा के 2 हफ्ते तक कर रहा है. So that is what we mean by increasing the shelf life of food. Now, moving to the benefits of food processing. While discussing all this, now let's move to the discussion of why we process food. It removes toxins, obvious cause है. It preserves the food. Preserves का मतलब है कि काफ़ी टाइम तक उसको बचा के रखता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को ख़राब नहीं करने देता. It increases the food consistency. इट मेक्स ईजी द टास्क ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अगर उसकी हम प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा. तो मार्केट तक पहुंचने से पहले और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंचने से पहले वो ख़राब हो चुका होगा, उसको कोई नहीं खरीदेगा. तो हम उसको प्रोसेस करते ताकि वो ज़्यादा टाइम तक सही कंडीशन में बना रहे. इट एनेबल्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेलिकेट पेरिशेबल फूड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस. तो कुछ आइटम्स ऐसी होती है तो जल्दी ख़राब हो जाती है. जैसे आप मशरूम का केस ले सकते हैं. मशरूम एक ऐसी आइटम है जो मेरे ख्याल से जिसका शेल्फ़ लाइफ शायद 2 दिन तक रहता होगा. तो अगर आप इसको कहीं डिस्टेंट प्लेस तक, जहाँ जिन एरियाज़ में मशरूम नहीं उगती है, वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी. तो प्रोसेस्ड फूड होने की वजह से क्या रहता है, उसका शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ हो गया. इट मेक्स मैनी काइंड ऑफ फूड सेफ्स टू ईट बाई डीएक्टिवेटिंग द स्पॉइलेज एंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स. ये हम पहले बात कर चुके हैं. इट रिड्यूसेस द इंसिडेंट ऑफ फूड बॉर्न डिजीज़, क्योंकि उसके ऊपर माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ख़राब नहीं कर पा रहे हैं, तो जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होने थे वो प्रोड्यूस नहीं हुए, जिसकी वजह से आपको डिजीज़ हो सकते थे. तो वो जो फूड बॉर्न डिजीज़ हैं वो भी ख़त्म होते हैं उससे. नेक्स्ट, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स. अब हर चीज़ के जब फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं. तो नुकसान क्या है, इट अफेक्ट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड. दिस इज़ द फोरमोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग प्रोसेस्ड फूड, दैट इज़ इट इज़ अंडर न्यूट्रिशन. मतलब अगर आप कोई चीज़ फ्रेश ले रहे हैं, कोई आप सब्ज़ी फ्रेश खा रहे हैं, और उसके कंपैरिजन में अगर आप कोई एक पैकेट में आई हुई सब्ज़ी खा रहे हैं, तो चांसेस दैट कि जो फ्रेश वेजिटेबल होगा उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी उसकी एज़ कम्पेयर टू जो आपने प्रोसेस्ड फूड यूज़ किया है. फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है विटामिन सी इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग बाई हीटिंग, देयरफॉर कैंड फ्रूट्स हैव लोअर कंटेंट ऑफ विटामिन सी. तो जो जूसेस वगैरह हमारे पैक्ड आते हैं उसमें विटामिन सी का कंटेंट कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम फ्रूट्स को डायरेक्ट खाएं. फूड प्रोसेसिंग यूज़ फूड एडिटिव्स लाइक फ्लेवर्स, टेक्सचर्स, एनहांसिंग एजेंट्स विच मे बी अनहेल्दी. तो उसमें जो उसको प्रिजर्वेटिव एडिटिव्स वगैरह डाले गए हैं उसको काफ़ी टाइम तक हेल्दी रखने के लिए या काफ़ी टाइम तक उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, वो अपने आप में एक अनहेल्दी प्रैक्टिस हो सकती है. वो जो एक्स्ट्रा केमिकल ऐड हुए वो आपको हार्म कर सकते हैं. There is risk of food contamination by the process involved like mixing, grinding, etc. etc. तो ये कुछ मेजर ड्रॉबैक्स भी रहती हैं जब हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं.